Hello learners, how are you? I hope all of you are well. Today we will study trigonometry and we will continue the series of trigonometry, introduction of trigonometry, and we will solve remaining questions of exercise 12 of R.S. Agarwal. And I am hoping that आप सभी ने सभी क्वेश्चंस कर लिए होंगे. सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है 3 cot 31 डिग्री tan 15 डिग्री cot 27 डिग्री tan 75 डिग्री cot 63 डिग्री and cot 59 degree, and we have to find the value of this given identities or given trigonometric ratios without using any trigonometric table. मतलब बिना इनका वैल्यू पुट किए हुए हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? हमें ऑलरेडी पता है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, उसी को अप्लाई करने वाले हैं इसमें. तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3. अब एक बात नोटिस करने वाला है कि 31 डिग्री एंड 59 डिग्री इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री, है ना. एज वेल एज 15 डिग्री एंड 75 डिग्री को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री एंड 27 डिग्री एंड 63 डिग्री को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री, राइट. तो हम लोग 31 डिग्री 15 डिग्री एंड 27 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं. ऑलराइट, चलिए करते हैं. cot 31 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, राइट. tan 15 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री एंड cot 27 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री. ओके, जो बाकी बचा हुआ सब कॉपी कर ले रहे. tan 75 cot 63 एंड cot 59. tan 75 डिग्री cot 63 डिग्री एंड cot 59 डिग्री. इक्वल टू 3 tan 90 माइनस 31 इज इक्वल टू 59 डिग्री. सो इट विल बी tan 59 डिग्री. दिस विल बी cot 75 डिग्री. 90 माइनस 15 75 एंड tan 90 माइनस 27 इज इक्वल टू 63. वेरी गुड. tan 63 degree and then tan 75 and then cot 63 and then cot 59. Okay, now as we know that tan theta and cot theta are inverse of each other, means tan theta into cot theta value 1 होता है ना. So here tan 59 and cot 59 will become 1 as well as cot 75 and tan 75 become 1 and tan 63 and cot 63 become 1 because ये रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे के. और we can write it as 3 into 1 by cot 59 degree into this will be 1 by tan 75 degree into this will be 1 by cot 63 degree into tan 75 degree into cot 63 degree into cot 59 degree. All right, now cot 59 cancel, tan 75 cancel, cot 63 cancel. So what is left? Only 3. Hence the answer will be 3. Very easy, right? आगे चले. Now we are going to solve question number 14. Question number 13 is similar to question number 14, so we are going to solve question number 14. Okay, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 इज cos 70 डिग्री बाय sin 20 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री cosec 35 डिग्री डिवाइडेड बाय
डिवाइड बाई tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री एंड tan 85 डिग्री, एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है। As we know that cos theta is equal to sin 90 minus theta, and 90 minus 70 degree will be equal to 20 degree. So we can write it as sin 20 degree. So it will be sin 20 degree by sin 20 degree plus cos 55 degree will be equal to sin 35 degree. So it will be sin 35 degree into cosec 35 degree divided by tan 5 degree will be equal to cot 85 degree. So it will be cot 85 degree into tan 25 degree will be equal to cot 65 degree, 90 minus 25, 65. So it will be cot 65 degree and tan 45 degree वैल्यू होता है 1, है ना, into tan 65 degree into tan 85 degree. ओके, अब देखो sin 20 कैंसल, यहाँ केवल 1 बच गया, है ना। sin 35 एंड cosec 35 मिलकर क्या बनाएगा 1, क्योंकि ये इस रेसिप्रोकल होता है। 1 बाई cosec 35, cosec 35 cosec 35 कैंसिल, है ना, तो ऊपर में भी आ गया हमारा 1, cot 85 tan 85 1 हो गया, cot 65 tan 65 1 हो गया, तो नीचे भी क्या आया 1 ही आया, है ना। तो मीन्स 1 plus 1 दिस विल बी इक्वल टू 2. This is your answer. Easiest one, right? I am leaving question number 15, 16 and 17 and 18 for you and going to solve question number 19 and 20. Question number 19 is cos 90 degree minus theta sec 90 degree minus theta into tan theta divided by cosec 90 degree minus theta sin 90 degree minus theta cot 90 degree minus theta plus tan 90 degree minus theta by cot theta, है ना। देखो cos और sec क्या होता है एक दूसरे को उल्टा होता है ना। हाँ, यहाँ पे है 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा। यहाँ पे है cos 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, दोनों इनवर्स एक दूसरे का, कट हो क्या बनाएगा 1, है ना। नहीं समझ में आ गया, वेरी गुड। कॉसेक एंड साइन ये भी कट हो क्या बनाएगा 1, ऑल राइट। तो मतलब इनका काम तो खत्म हो गया, यहीं पे ये 1 ही आ गया, किस्सा ही खत्म। सो हमारे पास क्या वैल्यू बचा, ओनली tan थीटा डिवाइडेड बाय cot 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है tan थीटा। सो हो गया हमारा tan थीटा प्लस tan 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या वैल्यू होता है cot थीटा डिवाइड बाय cot थीटा। tan थीटा कैंसिल, cot थीटा कैंसिल, केवल क्या बचा 1 + 1, hence आंसर विल बी 2। देखने से इतना आसान नहीं लगा था ना, लेकिन कितना आसान है कि नहीं। Our next question is question number 20.
and it is sin 50 degree plus theta minus cos 40 degree minus theta plus tan 1 degree tan 10 degree tan 20 degree tan 70 degree tan 80 degree and then tan 89 degree. cos थीटा को साइन थीटा को हम लोग cos थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कर दें। तो इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा, cos 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस थीटा, दोनों नेगेटिव आएगा, एंड देन माइनस cos 40 डिग्री माइनस थीटा, राइट, एंड देन प्लस tan 1 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे कॉट में तो cot 89 डिग्री होगा, 90 माइनस 1 cot 89 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री विल बी इक्वल टू cot 80 डिग्री, वेरी गुड, cot 80 डिग्री, tan 20 डिग्री विल बी इक्वल टू cot 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, राइट। ना अब इसका वैल्यू क्या आएगा, cot 90 माइनस 50 विल बी 40 डिग्री, 40 माइनस थीटा, सो इट विल बी cos 90 माइनस 50 बिकम 40 डिग्री, 40 माइनस थीटा and then minus cos 40 degree minus theta, right? Here cot 89 degree and tan 89 degree are inverse of each other, so cut होकर क्या बनेंगे वो 1, है ना, as well as cot 80 and tan 80 will be 1 and together cot 70 and tan 70 will become 1, है ना, एक बन जाए 1 हो जाएगा टोटल, क्योंकि इनवर्स है एक दूसरे का, नहीं समझ में आ गया, वेरी गुड। सो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 बिकम 1, ये हो गया कैंसल, 0, वैल्यू क्या है हमारा केवल 1, देखो सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा ना, सिंपल है। तो यहाँ होता है हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। Till then keep learning.